Good morning, students. So far, we have completed our electrochemical cell topic. और उसमें हमने बात की थी कि आपके पास दो हाफ सेल होंगे, वन इज़ ऑक्सीडेशन हाफ, वन इज़ रिडक्शन हाफ, एंड सेल विल वर्क एंड इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस solution is 1 molar and this solution is 1 molar, it means 1 mole in 1 liter. If it is a half liter, then half mole. Then the potential of this cell is E naught cell is 1.10 volt. 1.10 वोल्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ 1.10 वोल्ट के पोटेंशियल से फ्लो करेंगे और यहाँ से इस तरफ मीन्स कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करेगा 1.10 वोल्ट से. बट दिस पोटेंशियल ऑफ द सेल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. शुरुआत में आपको ये 1.10 मिलेगा, बट एज द टाइम पासिस द पोटेंशियल स्टार्ट्स टू डिक्रीज. जो इसकी पोटेंशियल है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. वो क्यों? उसका रीज़न है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सेल. ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज एंड इंक्रीज आना स्टार्ट होगा. वो कैसे? देखो, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयोन कहाँ चले जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर. हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इट विल increase, it will start to increase because the zinc rod will produce zinc 2 positive ion and they will dissolve in the solution to increase the concentration of zinc 2 positive ion. But here जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ आए उन्हें कौन ले लेगा? इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ आ जाएगा. तो जितने कॉपर यहाँ आएंगे उतने कॉपर यहाँ से कम होते रहेंगे. सो हेयर कॉपर 2 पॉजिटिव आयोन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज एंड एट वन टाइम दिस सेल विल नॉट वर्क and at that condition V potential will become equal to 0. change potential will become equal to 0 वोल्ट से ये सेल शो करेगा. It means with the change in concentration the voltage of the cell, voltage means cell potential, इसे बोलेंगे हम cell potential. The cell potential of the electrochemical cell will increase or decrease with the change in the concentration. And to show the relation between the concentration of reactant and product, scientist name as Nernst, he proposed an equation known as Nernst equation. By using that equation you can calculate what is the voltage of the cell, what is the voltage of the cell or what is the potential of the cell if the concentration of product and reactant is that at that time. Means what is the concentration of reactant and product and what will be the cell potential we can calculate. And for that formula is, I will write the formula. E cell means cell का potential. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n into log of concentration of product divided by the concentration of reactant. This is the formula. And one thing to be noted here that this numerical is most important numerical. If you see the previous year papers, out of last 10 year 8 times it has come in the board. Means in a 5 year 4 years this question has come in the board. And ये आपके लिए अच्छी बात है कि दिस ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया है.
तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आपके पास बोर्ड में 3 मार्क्स में पक्का आएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बट सी क्या क्या करना है इसमें, आपने ई नोट सेल तो निकालना है, सॉरी ई सेल तो निकालना है। ई नोट सेल दिया होगा, व्हाट इज़ ई नोट सेल? ई नोट सेल निकालेंगे आप, ई नोट सेल इज इक्वल टू दी ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको कैथोड और एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। ई कैथोड इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई एनोड इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। इट विल बी गिवन टू यू, or otherwise E node cell will be given. One thing will be given to you, either E node cell or E cathode and E anode. Minus 0.0591 divided by n. N is the number of the electrons that move from cathode to anode or anode to cathode. How? Like here, zinc copper cell is there, 2 electrons. Zinc will lose 2 electrons and they will reach to the copper. So here the value of n will be 2. ये आपको रिएक्शन देख करके बहुत ईजिली पता चल जाएगी the value of the n. And concentration of product and reactant will be given to you in the numerical. So I will try to solve some questions on the basis of this concept. For example, this type of question will be given to you. This reaction will be given to you, and the question will be to find the cell potential or EMF. Cell potential or EMF of the following cell. It is a nickel and a silver cell. Now, E naught cell, it is given in the question. Its value is 1.05. So 1.05 is the value of E naught cell. And one thing, E naught cell value should always be positive. It means जो आपका पोटेंशियल है वो कुछ प्रेजेंट है सेल के अंदर। अगर आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सेल आपका काम नहीं करेगा। तो ई नोट सेल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। अगर अभी जब बाद में आपको कभी इलेक्ट्रोड और कैथोड की वैल्यू अलग से मिलेगी तो वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो, उसको दूर करने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि ई नोट सेल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n. Now see here, by seeing the reaction you will be able to find the value of n. N value will not be given in the numerical. Here it is nickel, and nickel is changing into 2 positive. Its oxidation state is 0, its oxidation state is +2. So how many electrons nickel is losing? 2. If it is losing 2 electron, then silver will be gaining 2 electron. That's why the value of n is 2 into log of concentration of product and reactant. Now 2 concentrations are given. It is a concentration 0.002 m, यहाँ मोलर लिखा होगा, and the meaning of this bracket is molar concentration. Whenever this bracket is given, it means molar concentration, and you have to show this bracket also in the numerical. Now to find which is product and which is reactant, see, nickel is changing into nickel 2 positive. It is product side, this side is reactant side, this side is product side. That's why it is the concentration of the product. So right here 0.160, it is the concentration of product, because निकल चेंज हो रहा है आयोन्स में, और कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द आयोन। अब ये तो बन रही है, दैट्स वाई इट इज़ प्रोडक्ट। एंड सिल्वर पॉजिटिव, मतलब कि सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन लेगा जो निकल लूज करेगा, सिल्वर पॉजिटिव इन चेंज इनटू सिल्वर एटम। दैट्स वाई यहाँ तो कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। इट मीन्स ये यूज़ हो रही है, एंड its concentration is used, that's why it is reactant, although you can remember it by the point that it is on the reactant side.
जो रिएक्टेंट साइड पर है वो आपकी कंसंट्रेशन हो गई रिएक्टेंट की, दैट इज़ 0.002 एंड वन मोर थिंग नाउ सी हेयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मीन्स जो भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पहले नंबर दिया होगा 1 2 3 4 5 वो उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। निकल का स्टोक्योमेट्री 1 ही है, नो प्रॉब्लम, बट हेयर द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर पॉजिटिव इज 2 एंड हेयर 2 सिल्वर आर देयर, दैट्स वाई यू विल रेज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाय 2। जिसमें जितने कोफिशिएंट होंगे आपके स्टोक्योमेट्री के, आप उसकी कंसंट्रेशन को उसी से उसकी पावर से ही रेज कर दोगे। एंड नाउ इट इज़ योर क्वेश्चन एंड 0.0591 डिवाइड बाय 2 regarding log the best thing is that they will give you the value of log in the question paper। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही log की वैल्यू दी होगी, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको log समझना है दैट आई विल डिस्कस इन द क्लास हाउ टू सी द log, बट it is not required because the value of log is given in the question paper। so यहाँ पे आपके पास 0.160 ऑल्दो मे बी कि आपको log 0.160 की वैल्यू दी हुई हो, या ये हो सकता है कि आपके पास वैल्यू जो है वो log 4 की भी दी हुई हो। देन यू चेंज इनटू 16 एंड 4 इंटू 4 16। तो इस तरीके से भी आपको log की वैल्यू दे सकते हैं। हाउ टू यूज़ दिस वैल्यू विल डिस्कस इन द क्लास इन डिटेल। जब भी आप यहाँ पर देखिए तो इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा इसकी वैल्यू करके सोल्व करके आ जाएगी आपकी 4 प्लस 0.6021 एंड द लास्ट रिजल्ट विल बी 0.914 वोल्ट। ओके, आई एम शोइंग यू हेयर हाउ this question has been solved in the notes. It is on the page number 19. See, it was मतलब यहाँ तो जो भी था log को हमें सोल्व करना है। log is 0.16 डिवाइड बाय 0.002 रेज बाय पावर 2 एंड 1 2 3 4। इट मीन्स ये ऐसे आएगा log 0.16 3 and 3 6, it means after 6 1 2 3 4 5 and this is 6। जिसको अगर आप करोगे भी तो सोल्व करके आपके पास आएगा 5 टाइम्स 0 एंड 4 2 and 2 4 इसका। नाउ इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि आपको अगर ये वैल्यू दी भी होगी ना यहाँ पर log की, वो वैल्यू दी होगी log ऑफ 4 इज इक्वल टू 0.6021। ये वैल्यू आपको दी होगी इन द बोर्ड एग्जाम, बट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका सोल्व हो रहा होगा। देन डू वन थिंग, सिंप्लीफाई इट, चेंज दिस log 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, डिवाइड बाय ये क्या होगा आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻6 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइनस था ऊपर प्लस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे जा करके +6 तो 10⁻⁴ डिवाइड बाय 4। आप इसको कर दोगे यहाँ से क्या आ गया 4। इट मीन्स ये कुछ ऐसे आया log ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴ एंड वी नो log में जो भी 10 की पावर होगी वही log की वैल्यू होगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 4, दैट्स वाई इसको हमने यहाँ पर 4 लिया हुआ है 4। एंड क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है और log में हम मल्टीप्लाई को प्लस करते हैं 4 प्लस this is the value of log 4, it will given to you in the exam and by solving this you will get the answer. Like this way I am just trying to solve other questions also because ये थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस तरीके का आ सकता है, ज़्यादा चांसेस के ही आने के हैं। सी यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है 2 क्रोमियम
+3 Fe2 पॉजिटिव, इट इज़ द कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट साइड पर है तो ये कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी रिएक्टेंट की। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस साइड आ जाएगी। एंड नाउ सी हेयर, यहाँ पर आपको ई नोट सेल नहीं दिया हुआ है। गिवन वैल्यू ई नोट ऑफ क्रोमियम इज दिस एंड ई नोट ऑफ आयरन इज दिस। एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल, वी नो, यहाँ पर लिखा है, इसमें नहीं, यू शुड राइट ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एंड वी नो रेड कैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। ई एनोड एनॉक्स, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। नाउ टू थिंग्स आर देयर टू फाइंड कि कौन सा पोटेंशियल, दो पोटेंशियल है यहाँ पे, -0.74 पोटेंशियल भी दिया हुआ है और -0.44 पोटेंशियल भी दिया हुआ है। इसमें से कौन सा एनोड का है और कौन सा कैथोड का, टू वेज आर हेयर। फर्स्ट देखो जो पढ़ा है +1 में, क्रोमियम से क्या बन रहा है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, ये क्या हो रही है, इंक्रीज इन क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कितनी हुई, +3। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स जो क्रोमियम है इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसका पोटेंशियल कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट मीन्स ये क्या है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दिया हुआ है आपको ई नोट से, यानी कि ई नोट सेल में आपके पास जो ये वैल्यू है ये दी हुई है एनोड की, एंड ये कौन सी होगी, कैथोड की। अब देखो आपके पास आयरन 2 पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है इधर, आयरन। इट मीन्स क्या हो रही है, रिडक्शन। इट मीन्स जो आयरन के लिए वैल्यू दी हुई है वो कौन सी है, आपकी रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड की वैल्यू। इट मीन्स -0.44 माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड, एंड इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव -0.74, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.44 माइनस में प्लस, माइनस माइनस प्लस 0.74, आंसर आएगा +0.30 प्लस में आया है। इट मीन्स ये राइट है। फर्स्ट थिंग तो आपने देख लिया इस तरीके से। अगर मान लो कभी ऐसा ना दिया हो या आपको थोड़ा सा समझ ना भी आ रहा हो, तब देखो यहाँ जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है। इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। नाउ अगर रिडक्शन पोटेंशियल जितना माइनस में होगा उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ -0.44 है, इट इज़ -0.74, इट इज़ मोर नेगेटिव। इट मीन्स इसकी क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन का। और क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू -0.74, द वैल्यू ऑफ -0.44 इज़ मोर, एंड it is the value of reduction potential, that's why it shows the reduction, because here the reduction potential is more, and because its value is less than this, it is oxidation potential. So by seeing these you can easily find the value of E naught cell. So for today it's over, and you should try to solve as many as much these non-stick vision questions, because almost 90% chance are there that next year you will get the question from this topic, and in notes I given a lot of practice for this type of questions. So tomorrow we'll start with a new topic.